titled 1857 Story of the Great Uprising, captures the historical account of this unforgettable milestone of Indian history and various events related to the uprising. Congratulations and thank you, Srivardhan. I now request Dr. Anjali Kapila to come up on stage. Three of her books are being released today. She has authored the title A River Sings the Ganga from Gangotri to Haridwar, which basically explores the interconnection between the holy Ganga and the people, primarily women, who live in the Ganga River Valley mentioned in the title. Dr. Kapila's next book is called Guru Gunati Ganga, which has been compiled by her and is a collection of songs and poetry sung by the people living on the banks of the river Ganga. We are releasing the original Garhwali version and its Hindi translation done by Mahipalni Ji. I now request Sri Bhagwan Das Patel to come up on stage. Yeah, he is unable to attend due to a pre-scheduled commitment. Sri Bhagwan Das Patel's book titled Adivasi Lok Sahitya Shastra, which talks about the tribes of Gujarat and their culture. To commemorate the 550th birth centenary of Sri Guru Nanak Dev Ji 2 years back, IGNCA is compiling a series IGNC is compiling a series of 13 volumes on the life and teachings of Sri Guru Nanak Dev Ji, which will be released shortly. Today, we are releasing two other books on Guru Nanak Dev Ji, which have been translated or compiled by IGNC scholars. The first, titled Guru Piyush Lahari, a Stuti Kavya of 53 shlokas by Sri Keshavanand Swami, throws light on the teachings of Baba Nanak and has been translated to Hindi by Dr. N.D. Sharma, former HOD Kala Kosa division of IGNCA. I request Dr. N.D. Sharma to come up on stage. Sarul Haq to come on stage. Dr. Sarvarul Haq's book on the life and teachings of Sri Guru Nanak Dev Ji, titled Urdu Nazmo Mein Nanak Ka Chitran, is a compilation of nazms over the last 160-year period, reflecting the views of Baba Nanak on different religions, his faith and belief in humanity. Last but not the least, the final publication being released on this special occasion is Vihangam, which is IGNCA's bi-monthly magazine. It is published once every 2 months and highlights the activities of the center with articles written by IGNCA staff as well as other authors. We congratulate all the authors and thank the Honorable Minister Sri Arjun Ram Meghwal, Sri Ram Bahadur Rai and Dr. Sachidanand Joshi for making this moment memorable for all of us. I now request Sri Arjun Ram Meghwal Ji, Honorable Minister of State for Culture and Parliamentary Affairs, Government of India, to address the gathering.
IGNCA का 34वां स्थापना दिवस और इस स्थापना दिवस के समारोह के अवसर पर उपस्थित IGNCA के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम बहादुर राय साहब, हमारे सदस्य सचिव श्री सच्चिदानंद जोशी जी, जो राज्यसभा में माननीय सदस्य हैं और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, दिव्यांगना भी हैं, श्रीमती सोनल मान सिंह जी, उनका श्री राम कथा पे आप एक कार्यक्रम देखने वाले हैं। मैंने इसको बनारस में देखा है। इसमें नाट्य भी है, संगीत भी है, नृत्य भी, और इन तीनों विधाओं को प्रस्तुत करने वाली कलाकार एक ही है, नाट्य, नृत्य और संगीत। और इसकी विशेषता यह है इस कार्यक्रम की कि इसमें सोनल मान सिंह जी कोई डायरी नहीं रखती है, कोई पन्ना नहीं रखती है। वैसे महिलाओं की उम्र पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बनारस में इनसे पूछा। ये कार्यक्रम था 1.5 घंटे का। आपको भी शायद जानकारी नहीं होगी सोनल मान सिंह जी की उम्र क्या है। 1.5 घंटे वहाँ शायद मंच पे पानी की भी प्रॉपर व्यवस्था थी नहीं, लेकिन यहाँ रखी नहीं, रखी उधर रखी है। 1.5 घंटे तक एक आराम से इधर अग्निहोत्री जी के पास ही बैठ सकते हो ना, अग्निहोत्री जी मैडम, या उधर। अच्छा, अपन आएंगे बाद में, अपन आएंगे क्या? हाँ, ऐसा होगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा ये नीचे उतरने में थोड़ी दिक्कत रहती है। संचालन हमारे कर रही प्रीति कपूर जी, हेमलता जी, अग्निहोत्री जी, मैडम अग्निहोत्री, सभी इस कला जगत से जुड़े हुए सभी आदरणीय हमारे मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, IGN संस्थान से भी जुड़े हुए हमारे अधिकारी कर्मचारी, देश के भी हमारे साथीगण। विषय कई आ गए, लेकिन राम बहादुर राय जी ने एक विषय जो दिया उस पर मैं पहले चिंतन करना चाहता हूँ, चाणक्य विषय पे। आपने पूर्णिमा का विषय दिया, नानक देव जी की जयंती का विषय भी है, रानी लक्ष्मीबाई का भी आज जन्मदिन है, कई विषय हैं। लेकिन हमारी संस्कृति कितनी महान थी इसका जिक्र अभी राम बहादुर राय साहब कर रहे थे। तो क्योंकि ये है तो पड़ाव, मंजिल तो नहीं है। आपने क्या इसको मंजिल मान लिया क्या? ये पड़ाव। हाँ, क्यों हिमलता जी, तो पड़ाव ही है ना, मंजिल नहीं। मंजिल तो जो इन्होंने कही थी वही है। हम कितने प्रॉस्पर थे ये खैर इतिहास के पन्नों में दर्ज भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी विद्वतापूर्ण कार्य होता था, इतना तर्कपूर्ण कार्य होता था, इसकी जानकारी वेस्टर्न को या वेस्टर्न फिलोसफर को कम थी। ये जाती है जिन दो महापुरुषों का नाम ले रहे थे, स्वामी विवेकानंद के माध्यम से और महर्षि अरविंद के माध्यम से, और उसके बाद एक जर्मन विद्वान यहाँ आए, मैक्स मुलर। उन्होंने यहाँ हमारे जो सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी है उसका अध्ययन संस्कृत में करके, और जैसे सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी वेस्टर्न वर्ल्ड को दी, तो बहुत लोगों को जानकारी हुई कि इतना ज्ञान भरा हुआ है क्या भारतीय साहित्य और संस्कृति में। लेकिन चाणक्य तर्कपूर्ण ज्ञान, यथार्थ दर्शन के पूरे धातु, एक
कथा जो मैंने सुनी, मैं यहाँ सुना देता हूँ कि एक चाइनी विद्वान, चीन के एक विद्वान ये जानने आए कि कौन है चाणक्य जो इस तरह के राजाओं को तैयार करता है, इसका अध्ययन करना चाहिए हमें। अभी भी ऐसा होता है, हमारे यहाँ अभी भी ऐसा होता है, और ऐसी बात नहीं, हम भी करते हैं। जैसे एक बार हम लता मंगेशकर जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा बहुत से वेस्टर्न के विद्वान कहते हैं कि इतना सुरीला गला आपको कैसे मिला, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ये विषय रहता है। तो उस समय ये विषय रहा है कि भाई कौन है चाणक्य। कुछ समय बाद जिनका जिक्र कर रहे थे, या वैसे भी बहुत से ऐसे विद्वान जैसे शंकराचार्य, जिन्होंने 32-33 साल उम्र ली होगी, लेकिन इतना विद्वान कैसे हो गए, लोग अध्ययन करते हैं। स्वामी विवेकानंद 40 पार नहीं किए, इतने विद्वान कैसे हो गए, लोग अध्ययन करते हैं। सिस्टर निवेदिता थी बार की, यहाँ आकर के कैसे इंडिया में इतना काम कर गई, ऋषि भारत को अपना देश कैसे मान लिया, इसका भी लोग अध्ययन करते हैं। उनका भी 150वीं जयंती है सर, सिस्टर निवेदिता की। ये सब विषय रहते हैं। तो चाणक्य का अध्ययन करने चाइनीज एक विद्वान आए तो वो अपना काम कर रहे थे। चाणक्य उनका कक्ष में गए वो, और पूछा भी आप कैसे आए, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ आपसे पर्सनल बात करनी है। तो उन्होंने कहा आपको वेट करना पड़ेगा, पर्सनल बात करनी है। तो वो वेट करते रहे, घंटा 1.5 घंटा वेट करने के बाद उसने देखा ये मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं, लेकिन घंटा 1.5 घंटा वेट किया। उसके बाद उन्होंने जो काम कर रहे थे उसको समेटा, और समेट कर अलग रखा। तब तक भी उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ चीनी विद्वान को। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने जो दीपक जल रहा था वो बुझाया, और बुझा करके इस कोने पे अलग रख दिया, और उस कोने से एक नया दीपक लाए, और उस दीपक को जला करके, और उन्होंने पूछा अब बताइए क्या काम है आपका। तो उन्होंने कहा अब तो मेरा जो काम है वो तो दूसरा हो गया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये आपका ये दीपक जल ही रहा था, आपने इसको बुझाया क्यों, और इतनी दूर से उठा करके उस दीपक को आप लाए और इसको जलाया, बात तो एक ही है। फिर इसको जला करके अब आप मेरे से पूछ रहे हो कि आपका काम क्या है। तो चाणक्य ने क्या जवाब दिया? चाणक्य ने कहा मैंने आते ही आपसे पूछा था आपका काम क्या है, तो आपने कहा व्यक्तिगत है। तो मैं जिस दीपक से काम कर रहा था वो दीपक सरकारी था, उसमें तेल सरकारी था, उसमें बाती सरकारी थी, और मैं काम भी सरकारी कर रहा था। अब जब मैं आपका व्यक्तिगत काम करने के लिए तैयार हुआ हूं तो मुझे सरकारी दीपक को बुझाना पड़ा, और मुझे मेरा व्यक्तिगत दीपक जिसमें मेरा तेल है, मेरी बाती है, मेरा दीपक है, इसलिए मैंने आपको कहा बताइए क्या काम है। तो उसने कहा मेरे बात समझ में आ गई, इस ऐसे अगर विद्वान आदमी यहाँ है तो भारतीय संस्कृति को बहाली होगी। उसने आगे कुछ पूछा नहीं। ऐसे शुद्ध आचरण सिखाने वाले चाणक्य का जिक्र यहाँ हुआ। मैं आप राम बहादुर राय साहब आपका प्रणाम करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे इस शुद्ध आचरण सिखाया। काम हम कहाँ खो गए, कहाँ गड़बड़ हुई, यही चिंतन का विषय है जिसका प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, यही समय। हम 34 साल आईजीएनसी में कहां तक चले ये विश्लेषण करने का समय है। पड़ाव है, मंजिल हमारी जो राम बहादुर राय साहब ने बताई वो है, उस मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे इसकी यथार्थ की कोई नीति भी बढ़नी चाहिए, ये भी एक विषय रहना चाहिए हमारे आईजीएनसी। आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का जिक्र हमारे दोनों ने, हमारे अध्यक्ष जी ने और सेक्रेटरी साहब ने किया। पूर्णिमा के लिए भारत का एक अलग विशेषताएं रहती है, परिक्रमा का विषय आपने कहा, लेकिन मैं एक कार्यक्रम करता हूं पूर्णिमा के दिन, उसका नाम रहता है एक रात चांद के साथ। हमने वेस्ट से लिया कि हम कार्बन एमिशन को कम करने के लिए अर्थ डे पे 1 आवर इज ए 0 आवर ये कार्यक्रम करेंगे, जिससे कार्बन एमिशन को कम करने में हम अपना योगदान देंगे। हमने कहा भी ऐसा क्यों?
हम साल में एक दिन करें अर्थ डे पे 1 आवर इज 0 आवर, उसकी बजाय साल में 12 पूर्णिमाएं आती हैं और हर पूर्णिमा को एक रात चांद के साथ करें और कोई लाइट नहीं जल रहा है, चंद्रमा की रोशनी में रहे, तो हमें शीतलता भी मिलेगी, चंद्रमा का अनुभव भी होगा। तो वो हमारी भारतीय संस्कृति है। हम 1 आवर इज 0 आवर की बजाय एक रात चांद के साथ क्यों नहीं कर सकते? हम घर की बत्तियां जगा करके क्या हम एक रात चंद्रमा के साथ नहीं रह सकते? बहुत से लोग कहते हैं चंदा मामा, कहते हैं ना तो, लेकिन जानकारी बहुत कम है कि चंदा मामा क्यों कहते हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का ही पार्ट था कि मामा क्यों कहते हैं। मामा किसको कहते हैं? राजीव तेरे को मामा है ना, मामा जी तेरे है ना, तो तेरे मम्मी के भाई हुए तभी तो मामा जी हुए ना, है? तो चंदा मामा ये इसलिए कहा गया, इसमें साइंटिफिक पुट भी है सब, लेकिन हमारे थॉट को, साइंटिफिक पुट वाले थॉट को तो हटा दिया और धर्म से जोड़ के कहा नहीं है, तो ऐसे ही कह रहे हैं चंदा मामा भारत के लोग। ऐसा नहीं है जी। देखिए, कोई महिला शादी होकर के अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में उसके उस परिसर में, ससुराल के परिसर में उसके पति भी नजदीक है, जेठ भी नजदीक है, उसके सास ससुर भी नजदीक हैं, बच्चे भी नजदीक हैं, लेकिन इस परिसर के अलावा जो सबसे नजदीक होता है वो भाई होता है। तो पृथ्वी हमारी मां, हम कहते भी हैं पृथ्वी हमारी मां, तो पृथ्वी हमारी जब मां है तो जो प्लेनेट है पृथ्वी, उस प्लेनेट के सबसे नजदीक कौन है जो पृथ्वी को सबसे प्रिय है? वो चंद्रमा है। तो वो उनका भाई हुआ, इसलिए हमारे चंद्रमा मामा हवे, इसलिए चंदा मामा है, इसलिए मामा है। इनमें क्या हमको मामा को याद नहीं करेंगे क्या? क्या सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, चंद्रमा मामा तो है। करवा चौथ के दिन के विषय पे अपन एक दिन आपका तो वर्कशॉप कर सकते हैं। चंद्रमा की कलाएं, जैसे हम कला केंद्र में बैठे हैं ना, तो चंद्रमा भी 16 कलाओं का मालिक है, जैसे भगवान कृष्ण भी 16 कलाओं के मालिक थे। तो उसका हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन चंदा मामा हम कहते हैं, लेकिन इसको मैंने मिडिल ईस्ट में किसी से पूछा था एक प्रोग्राम के लिए, उन्होंने ऐसे ही कह दिया, नहीं यू बिलीव इन सन एंड वी बिलीव इन मून। वो मैंने कहा ऐसा मत करो यार, प्रकृति को मत बांटो, ये तो आपका गलत बात है, गलत थॉट है। प्रकृति सबके लिए, ऐसे मत करिए। हम चंद्रमा को मामा कहते हैं, तो उसने कहा आप तो ऐसे कहते होंगे। ऐसे नहीं कहते हैं। मैंने कहा आप बताओ कैसे कहते हैं? तो नहीं मुझे तो पता नहीं है, बड़ा विद्वान आदमी था। फिर कहने में बताता हूँ, मैं इंडिया बहुत बार गया हूँ, मैंने भी सुना लड़के कहते हैं चंद्रमा चंदा मामा, किताबों में भी आता है। फिर जब मैंने बताया, उसने कहा अच्छा ये तो साइंटिफिक है। मैं यही साइंटिफिक है भाई, हमने भारत को मां कहना भी बंद कर दिया। क्या ये क्या है भाई? 1905 जिसका जिक्र कर रहे थे, वंदे मातरम, कितना तेज चला था सर भाव, कितना तेज चला था वंदे मातरम भाव। इसमें भी हमें शर्म आने लग गई। तो मामा तो भूल ही गए ना फिर मामा तो भूल ही गए ना। तो ये आज प्रकाश पर्व भी है। नानक देव जी ने एक ऐसे धर्म की स्थापना की थी जिसमें जाति बंधन नहीं हो, जिसमें सब प्रेम पूर्वक रहे, प्रकृति के भी नजदीक रहे, ये सब विषय थे। बाद में आपने कहा एक पंथ बन गया, गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर उसको खालसा पंथ में परिवर्तित किया, वो अलग विषय है। लेकिन नानक देव जी ने प्रेम जिसका जिक्र कबीर भी करते हैं, प्रेम जिसका जिक्र नानक देव जी भी करते हैं, ये प्रेम जो विषय है ना, जिसको कभी कबीर ने डिफाइन भी किया क्या है प्रेम, तब उन्होंने कहा भी, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यही पढ़ना जरूरी है, यही है। इसको कौन पढ़े? यह विषय था, यह नानक देव जी का भी यही विषय था कि हम आपस में प्रेम पूर्वक क्यों नहीं रह सकते, हम प्रकृति के नजदीक क्यों नहीं रह सकते।
हम प्रकृति के नजदीक रहेंगे तो हम बीमार भी कम पड़ेंगे। अगर हम कुछ कमाते हैं तो उनमें से कुछ अंश निकाल करके हम लंगर क्यों नहीं स्थापित कर सकते? जो भूखे हैं उनको भोजन क्यों नहीं दे सकते? उनको भी प्रेम पूर्वक भोजन दें, तो उसमें भी जो नारायण है उसको हम देख सकते हैं, और ये ईश्वर की एक व्यापकता है, उसका चित्रण हम लंगर में भी कर सकते हैं। ये सब शिक्षा नानक देव जी की थी। तो आज पर्व भी बहुत अच्छा, विषय भी बहुत अच्छा। मुझे लगता है आगे का कार्यक्रम सोनल मान सिंह जी तैयार हो गए होंगे, बहुत सुंदर कार्यक्रम, उसको देखना आप। मुझे तो आगे के किसी कार्यक्रम में जाना भी है, लेकिन थोड़ी देर तो देखना भी, राजीव, थोड़ी देर देखना है। आगे के कार्यक्रम में जाना। मैं इस 34वें स्थापना दिवस, जो IGNCA का 34वां स्थापना दिवस है, आपको अध्यक्ष जी और सचिव साहब सबको आपको बधाई देता हूं, पूरे स्टाफ को बधाई देता हूं, आप जो प्रोग्राम में आए उन सबको बधाई देता हूं। और ये पड़ाव जल्दी मंजिल की ओर अग्रसर हो तेज गति से, और मंजिल भी जल्दी प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind words of inspiration and guidance, which will motivate all of us at IGNCA to strive for and achieve even greater heights. Ladies and gentlemen, as we now approach our grand finale this evening, we request you to remain. Yes.